Hello dear students, how are you? Today we will discuss science worksheet number 33, metals and non-metals. Reaction of metal with acids. Metal plus dilute acid is equal to salt plus hydrogen. Metal reacts with acid to give a salt and hydrogen gas. Sodium plus HCl is equal to 2NaCl plus H2 and Zn यानी zinc plus 2HCl is equal to जिंक क्लोराइड प्लस H2। यानी कि मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। It is because nitric acid is a strong oxidizing agent. It oxidizes the hydrogen produced to water and itself gets reduced to any of the नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, NO, NO2। यानी कि जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस जो निकलती है वो उसको दोबारा से रिड्यूस करके वाटर बना देता है और खुद N2O, NO या NO2 ये गैसेस बना देता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नाइट्रिक एसिड में मेटल डाली है तो किस तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस निकल रही हैं, ऑरेंज कलर की, ब्राउन कलर की। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम प्लस 2HNO3 is equal to magnesium nitrate plus hydrogen, and manganese plus 2HNO3 is equal to MnNO3 whole twice manganese nitrate plus hydrogen. Reaction of metal with solution of other metal salts. Metal A plus salt solution of B is equal to salt solution of A plus metal B। यानी कि मेटल A ने B में से उसको डिस्प्लेस कर दिया है। आप देख सकते हैं इधर Fe प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगी, विस्थापित कर देगी। कॉपर प्लस 2AgNO3 इज इक्वल टू कॉपर नाइट्रेट प्लस 2Ag। कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला थोड़ा सा गलत है, इसको लिखेंगे CuNO3 2 whole twice। All metals are not equally reactive. If we check the reactivity of various metal with oxygen, water and acids, we find all metals do not react with these reagents. Iron plus copper sulfate is equal to ferrous sulfate plus copper. The reactivity series is a list of a metal arranged in the order of their decreasing activity. Activity series relative reactivities of metal. Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold। यानी मोस्ट रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव तक। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम और सोडियम है और हम आपको सोडियम की रिएक्शन करके दिखाएंगे अभी। ये देख लीजिए कितनी वॉलेंट रिएक्शन है सोडियम की। While metal from magnesium to lead can react with acid, metal from copper to gold are highly unreactive and don't react with any other substance in normal condition. This is the reason why metals like gold don't get corrode easily and don't form oxides, while metals such as zinc, aluminum, magnesium, calcium, etc. form oxides readily. Hydrogen is a non-metal, but still it has been included in the reactivity series as it helps in comparison of reactivity of metal. Let us practice some question. Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? So metal के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी। Write the chemical reaction when zinc react with dilute HCl। तो Zn प्लस 2HCl इज इक्वल टू ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। What happens when copper reacts with silver nitrate solution? Copper displays silver from its solution.
कॉपर प्लस 2AgNO3 इज इक्वल टू CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag, यानी कॉपर नाइट्रेट और Ag। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज केप्ट इन एन आयरन पॉट। आफ्टर फ्यू डेज द आयरन पॉट वाज फाउंड टू हैव नंबर ऑफ होल्स इन इट। राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन दैट टुक प्लेस। Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu, यानी आयरन ने कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्ट से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यूज द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट A, B, C एंड D। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो आप पहले देख सकते हैं। देखो A क्या है, A ने आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करी और कॉपर सल्फेट में डिस्प्लेसमेंट कर दिया, यानी A हो सकती है आयरन। B क्या है, B ने डिस्प्लेसमेंट आयरन को भी कर दिया, ठीक है, और जिंक के साथ, जिंक सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं की, यानी कि ये जिंक है। या उससे ज़्यादा रिएक्टिव भी हो सकती है, पर उससे ज़्यादा रिएक्टिव होती तो जिंक को भी कर देती है ना, जिंक को भी डिस्प्लेस कर देती जिंक सल्फेट से। तो इसका मतलब ये है ये जिंक है। C नो रिएक्शन, आयरन के साथ कोई रिएक्शन नहीं, कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं, जिंक सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं, और डिस्प्लेसमेंट कर दिया सिल्वर नाइट्रेट को, यानी कि ये कॉपर सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करी इसने, तो ये हो सकती है कॉपर, ठीक है। यानी ना तो जिंक के साथ करी, ना इसने आयरन सल्फेट के साथ करी, ना कॉपर सल्फेट के साथ, ना जिंक सल्फेट के साथ, तो ये कौन सी हो सकती है, कॉपर, क्योंकि कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन डिस्प्लेस कर सकता है। और डी देख लेते हैं, डी की किसके साथ कोई रिएक्शन नहीं है, तो यानी कि ये सबसे कम रिएक्टिव सिल्वर मेटल हो सकती है। अब हम आंसर आराम से दे देंगे, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, बी, यानी कि जिंक। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में अगर आप बी डाल देंगे तो वो डिस्प्लेस कर देगी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को, ठीक है। तो जिंक, हम हमारे अकॉर्डिंग जिंक है तो जिंक सल्फेट हो गया। अरेंज द मेटल ABCD इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हो गई बी, ठीक है, जिसने आयरन को भी डिस्प्लेस कर दिया। फिर ए है जिसने ए, ठीक है, तो BACD